और हमको हमेशा सिखाया जाता था कि साहब 20 से और 20 तक आपको सीखना है, 30 से 40-45 तक आपको अर्न करना है और फिर 45-50 के बाद आपको जो है लोक कल्याण के कार्य करने हैं और साथ में अपना ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, क्योंकि 45 के बाद फिर आपको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो जेन ज़ी का जो डिटैचमेंट है, दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे उनको दिया हुआ कोई टास्क हो। अब जैसे हम आजकल भी कई रैपर्स, ये क्या कौन से गाने हैं, गाने तो हमारे ज़माने में होते थे, वो बाबा साइकिल तो हमारे ज़माने में था। तो ये ना आई थिंक वो थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में आदमी ना अपना एक्चुअल भूल जाता है और वी स्टार्ट जजिंग देम टू सून। आजकल जो पेरेंट्स बन रहे हैं, इनका पेरेंटिंग स्टाइल में ना थोड़ा सा लव ज़्यादा है, डिसिप्लिन लेस। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6 साल के बच्चे को तुम्हें फौजी बनाना है या तुमने उसको इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, लेकिन 6 साल के बच्चे को एक चीज समझा देनी चाहिए, व्हाट इज एटिकेट, व्हाट इज डिसिप्लिन। Hello friends, I am Suresh Mohan Semwal. So today I have with me Mr. Vivek Kumar Jakmola, a very dear friend and a very respected professional in the automobile industry especially. Mr. Vivek Kumar Jakmola retired from the JBM Group as president in December 2021 at the age of 47. And I want you to focus on this age. He retired as president at the age of 47. Why he took that retirement, of course, I'll ask him. And he has been at leadership position prior to JBM Group with Lumax Group. He has been instrumental in more than 9 joint ventures related to Japan, South Korea, Italy, etc. During his tenure in the leadership position, he has received more than 50 awards and recognition. Very dear friend, very down-to-earth person who has been at the leadership position for more than 25 years. Nowadays, he gives his expertise, services by sitting on the board of many companies. He is still very instrumental in creating a lot of joint ventures for various companies because he sits on the advisory board of the companies. So today, I will have some heart-to-heart discussion with him on many subjects which you may like to hear. So tune in. Hello friends, my name is Vivek Kumar Jakmola and thanks to Suresh ji for giving such a fantastic introduction about me. I am today with him in this podcast. So Suresh, I have known him for almost 2 decades now. Excellent human being before being anything else. Been to more than 8 countries for delivering his programs. Did 25 years plus of corporate training in about various leadership styles. 600 plus corporates he has served. He has been author of 6 books. Also, the most important thing which I like about him when I was acting as his client and now as one of his partners in the trainings is that the trainings which he gives, he focuses on the real impact of his trainings on the P&L of the organization. So his ROI based training is his specialty, and that is something which I really like about the training style which he adopts. Apart from doing corporates, he has also been instrumental in training the government organizations like police, ITBP, and various universities. It's a privilege to be with him today in a free-flowing discussion. And I would like to then ask him more questions, of course, about his professional achievements and the methodologies, but then about what goes behind when he prepares for these kind of trainings. So look forward for today's discussion. Keep tuned in. All right. So, Jakmola साहब, thank you very much for giving your time. मेरा पहला प्रश्न जो कि मेरे ख्याल से सबके दिमाग में होगा कि सर 47 साल की उम्र में पहले तो आप इतने ऊंचे पद पर जो कि लोगों का सपना होता है वहां पहुंच गए। पहला तो ये सवाल है कि उसके पीछे का राज बताओ सर, इतनी स्पीड का। और दूसरा ये बताओ कि जब पहुंच गए थे तो वाई रिटायरमेंट? हाँ, मतलब लोग एक्सटेंशन लेते हैं रिटायरमेंट एज के बाद किसी शायद 4-5 साल और अभी रख लो। आपने ऐसी जल्दी आपने रिटायरमेंट क्यों ली सर? धन्यवाद सुरेश जी। और ये कोई बहुत कोई ग्रेट अचीवमेंट तो नहीं मानता मैं ये, बट जो आपका पहला प्रश्न है कि मैं
जितना जल्दी कैसे पहुंचा, तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि जो हवाई जहाज होता है वो धीरे धीरे उड़ता है क्योंकि उसमें जेट इंजन्स होते हैं, और लेकिन रॉकेट बहुत तेज उड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसकी जो प्रोपल्शन फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो प्रोपल्शन फोर्स जो जो फायर होती है उसमें, वो फायर के पीछे उसके बहुत सारे मेंटर्स और अर्ली स्टेज में जो उसको बॉसेस मिले होते हैं या जो उसके उसके मेंटर्स मिले होते हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मैं 22 साल की उम्र में जब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब स्टार्ट करी, तो मेरे पहले मेंटर जो मेरे कंपनी की जिस कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट करी उसके ओनर भी थे। उन्होंने मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीधा लखनऊ से और चेन्नई भेज दिया कि चेन्नई में एक प्लांट लग रहा था उस समय फोर्ड के लिए 1999 में, और वहाँ पर उन्होंने भेज दिया कि तू वहाँ जा और वहाँ फैक्ट्री चला। अब आप सोचिए 22.5 साल 23 साल का लड़का, वहाँ पर 11-12 वर्कर और स्टाफ के नाम पे सिर्फ मैं, और फैक्ट्री चलानी है, और वो चेन्नई था 1999 का। अच्छा। सो 1999 चेन्नई में आप हिंदी छोड़िए, इंग्लिश भी कोई नहीं बोलता था जिस एरिया में हम रहते थे। सो दैट वाज द स्ट्रगल, एंड आई वाज लाइक डेजिग्नेटेड प्लांट हेड एट सच यंग एज। और शायद वहाँ से उस समय तो हमें लगता था कि हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बट शायद हमारे मेंटर ने हम ये समझा, वो काबिलियत देखी और हमें हेल्प करी। तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे मिल के काम करते थे, लेकिन एज अ लीडरशिप ट्रेट्स जो मुझे वहाँ पर सीखने को मिली बहुत अर्ली एज में, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा प्रोपल्शन किया। एंड आई वाज लकी आल्सो टू बी विद वेरियस कंपनीज जहाँ पर अच्छे लोग मिलते गए जो जो सपोर्ट करते गए, ट्रस्ट करते गए, और मैं थोड़ा नॉर्मल जहाज से थोड़ा तेज उड़ पाया। Coming to taking early retirement, obviously there are personal reasons behind it, but एक जो सबसे बड़ा reason है कि I actually planned it at the age of around 35. I decided that I should be, let's say, coming out of the corporate race at the age of 45. It took me 2 more years. Probably the COVID was one of the reasons, और COVID की वजह से शायद 1-2 साल डिले भी हुआ वो। लेकिन जब आप एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ के बाद फिर आप सिर्फ ओनरशिप ही एक स्टेप बचता है, वहाँ पर जाके आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि जहाँ जिस दौड़ में आप भाग रहे हैं, उस दौड़ में सिर्फ मैदान बदलता रहेगा, आपके साथ दौड़ने वाले कंपटीशन बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी जो ऊर्जा लग रही है और आपकी जो एफर्ट लग रहा है उसके अंदर, वो आपका वही लगता रहेगा। तो उस स्टेज में जाके आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आप उसी रेस में भागते रहना चाहते हैं, या आप कुछ अलग हटके रेस को बाहर से देखकर और अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, ताकि सारे ही दौड़ने वाले लोग एक साथ जीत सकें, बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ जीत सकें। तो मुझे लगा कि दूसरा वाला पोर्शन एक बार ट्राई करना चाहिए, एंड ऊपर वाले की मेहर है जी कि पिछले 3-4 साल से मैं जब से कॉर्पोरेट से बाहर आया हूँ, शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई क्योंकि आदमी को उस शक्ति का नशा होता है जो उस पोजीशन की वजह से आती है, और ये भी होता है कि आपको रोज कुछ बड़ा करने की, बहुत सारे लोगों से बात करने की आदत पड़ जाती है। उससे थोड़ा बाहर आना और थोड़ा एक स्टेप बैक लेके चीज़ों को देखना और कंट्रीब्यूट करना बाकी लोगों की सक्सेस में, वो करने का एक अपना ही आनंद होता है जो बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। बहुत खूब सर, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की, आई थिंक मैं भी इससे रिलेट करता हूँ। अब जैसे कई लोगों को ना आजकल यंग एज में अगर आप थोड़ा काम ज़्यादा दे दो, जिसको एक्चुअली वो सोचते हैं कि लोड ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपने देखिए उसको क्या, आपने उसमें वर्ड यूज़ किया कि जिम्मेदारियां ज़्यादा दी हैं, और आपने जैसा कि कहा कि उन जिम्मेदारियों के कारण यू लर्नड मेनी थिंग्स। अब अदरवाइज तो स्कूल कॉलेज में फीस दे के सीखना होता है ना, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में कोई आपको पैसे दे रहा है तो मतलब, और उसके बाद जिम्मेदारी तो देगा, क्लासरूम थोड़ी देगा। तो हमारा क्लासरूम तो शॉप फ्लोर ही है, ऑफिस ही है। तो इससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ सर। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि फर्स्ट जॉब थी, अच्छा मैंने उस समय में कंप्यूटर कोर्स किए थे जब कंप्यूटर्स बिल्कुल नए नए थे इंडिया में। मतलब आप सोच के देखिए 586 MB की हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ना, वो उस समय की जो मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी की ड्राइव होती थी। तो तब हमने वो थोड़ा सॉफ्टवेयर वगैरह का कोर्स किया था। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, जो मैंने अकाउंट से शुरू की थी,
तो मेरा काम 1-2 घंटे में खत्म हो जाता था। अच्छा, उस समय में आप जानते हैं जिस कमरे में कंप्यूटर होता था उस कमरे में कोई और आता नहीं था जूते पहन के। मतलब आपका एसी वाला कमरा कंप्यूटर वाला जरूर होता था। तो अब आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में एयर कंडीशन कमरा मिला था और 2 घंटे में काम खत्म हो जाता था। लेकिन उस 2 घंटे में काम खत्म हो जाता था तो अगले जो 6 घंटे होते थे मैं उस कमरे में मुझे बड़ा असहज महसूस होता था। तो 15-20 दिन, महीना तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं महीने के बाद गया अपने बॉस के पास। वो रिटायर्ड फ्रॉम नेवी थे। मैंने कहा सर मेरे पास 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, या तो मुझे कोई काम दो, नहीं तो हाफ डे दे दो। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में कौन हाफ डे देता आपको? तो उन्होंने कहा भी तेरा काम कैसे जल्दी खत्म हो जाता है? तो मैंने बताया जी कि पिछले वाला तो मैनुअल करता था, मैं कंप्यूटर से करता हूँ तो 2 घंटे में हो जाता, आप पूछ लो कोई डाटा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा ऐसा कर, जब तेरे पास टाइम होता है ना तो ऐसा कर, जो हमारे ओवरड्यू हो जाती है पेमेंट्स, क्योंकि तो अकाउंट्स का आदमी है, जिसको वो फिर आप फॉलो अप कॉल करते थे, कह रहे तू किया कर। अच्छा, हमारा जो क्लाइंटेल था, सेना भवन, वायु भवन, कोस्ट गार्ड, तो सब डेकोरेटेड ऑफिसर्स। अब हम नवे दिल्ली यूनिवर्सिटी के निकले थे, ऐसी कोई भाषा की पॉलिश तो थी नहीं। अच्छा, फिर वहां अंग्रेजी में बात करनी थी, तो फिर वहां कॉल रिकवरी के फोन करने हैं, सोचिए आप। तो बड़ी पॉलिश हुई साहब, बड़ी गलतियां हुई, वहां से भी डांट पड़ती थी, फिर ओनर भी डांटते थे कि ये क्या तरीका है, पैसे मांग रहे हैं, उगाही थोड़ी करनी है, रिमाइंडर देना है। पर खैर, अच्छा, जो मेरे साथ काम करते थे कुलीग्स, वो कहते थे वाह भाई वाह, और बन हीरो। भाई तुझे कौन पूछ रहा है, तू बैठ के वहां सॉलिटेयर खेल, कौन पूछ रहा है? पर वो समहाउ, तो खैर, लेकिन अब रिमाइंडर कॉल्स भी रोज नहीं होती थी। भाई आपको एक बार कर दिया तो रोज रोज तो करना नहीं। तो मैं कहा कमांडर साहब अभी तो और भी बड़ा टाइम है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है? तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, तुम थोड़ा सेलिंग सीख लो। फिर उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, एयरलाइंस के साथ जो कोऑर्डिनेशन करना होता है, जो वो करता है, वो भी तुम कर लो। एंड गेस व्हाट, जो मैं पहले 5 बजे मतलब आराम से जा सकता था, अब 6, 6:30, 7 बजने लगे। तो दिक्कत हुई, लेकिन इसी में लर्निंग हुई। आज अगर मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अगर मैंने वो सब शायद नहीं किया होता तो मेरी कम्युनिकेशन शायद पॉलिश नहीं हुई होती, शायद मुझे सेल्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आज अगर मैं सेलिंग सिंप्लीफाइड पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो कर ही नहीं सकता था अगर कमांडर साहब ने मुझे एक अलग काम करने का मौका ना दिया होता। तो इसलिए जैसे ही आपने वो कहा ना, तो वो मुझे इमीडिएटली क्लिक हुआ कि लोग जिम्मेदारी को बोझ समझते हैं, जबकि जिम्मेदारी इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, प्रोवाइडेड हम उसको उस एंगल से लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुरेश जी। मैंने आपकी वो किताब पढ़ी हुई है, जिम्मेदारी की शक्ति, और उसमें जो आपने नगेट्स दिए हुए हैं और जिस तरह से आप आपने स्टोरी वाइज उस किताब को लिया हुआ है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़ी ही सहल भाषा में समझाया हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है और बड़ी आसानी से समझ में आती है। मेरा एक मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे आपने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिम्मेदारी की शक्ति हो गई, आपकी सेलिंग सिंप्लीफाइड हो गई, ये आप जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो बताते हैं और जो आप किताब में लिखते हैं, ऑब्वियसली उसका एक तरीके से रेफरेंस आपकी किताबों में मिलता है, उसको जो आप लिखते हैं और जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बताते हैं। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो किताब पढ़ के आदमी उतना बेहतर समझ सकता है जितना किताब प्लस आपकी ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन होता है, या आपको लगता है कि सिर्फ ट्रेनिंग ही सफिशिएंट है, या दोनों का कॉम्बो ज्यादा सफिशिएंट है? देखिए, किताब का जो एक लिमिटेशन है वो ये है, जैसे जिम्मेदारी की शक्ति आपने किताब की बात की है, तो वो किताब 2006 में छपी थी, लेकिन सेमवाल 2006 के बाद आज 2025 में कुछ थोड़ा बहुत और सीख गया होगा, वो किताब अभी वहीं की वहीं डटी हुई है। तो किताब की लिमिटेशन ये है, क्योंकि एज अ पर्सन यू आर एवरी डे यू आर बिकमिंग बेटर, यू आर लर्निंग समथिंग, इवॉल्विंग। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मैं आज से शायद 15 साल पहले कहता था, लेकिन आज मुझे खुद वो ठीक नहीं लगती सपोज। तो किताब की लिमिटेशन ये है कि किताब गेट स्टक अदर अनलेस कि आपने ऑफ कोर्स उसका रिवाइज एडिशन बार बार निकाला हो। हाउएवर किताब की एक चीज जो खासियत किताब की है और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में थोड़ा फर्क है, वो ये है कि जो रिटन वर्ड है ना, उसको लिखने से पहले आदमी 20 बारी सोचता है। तो लिखता आदमी बहुत ज्यादा ध्यान से, बोलता भले उतने ध्यान से ना हो। तो कोई भी ऑथर, मैं नहीं, कोई भी ऑथर अगर किताब लिखता है तो बहुत सोच समझ के लिखता है, उसको थोड़ा प्रूफ रीड करता है, दूसरे को दिखा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो क्या है, आप वहां खड़े हैं सबके सामने, उस वक्त आपके दिमाग में जो आया, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की क्या है, तो कुछ चीजें आप कहते हैं। तो किताब सब्सटेंस वाइज विल हैव मोर, प्रैक्टिकलिटी वाइज ट्रेनिंग विल हैव मोर इम्पैक्ट।
और अगर इसका कॉम्बिनेशन दोनों लोग करते हैं, जैसे हम कई कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं तो साथ में उससे रिलेटेड जो प्रिंटेड मटेरियल है ना, वो जरूर पार्टिसिपेंट्स को दो। तो उससे क्या होता है कि आप उसको ना फिर रीइंफोर्स बार बार कर सकते हो। अब जैसे आजकल तो चलो ठीक है, हमारे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह हैं तो वो रीइंफोर्स करने में मदद करते हैं, लेकिन पहले नहीं होता था। तो इसका कॉम्बिनेशन विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट in sustainability of the learning rather than one approach. So basically, relevance as per the current times हाँ जी, is better in terms of the training program plus the हाँ, website. कॉम्बो होना चाहिए। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि ऑब्वियसली आज से 15 साल पहले जब मैं आपके साथ मैं ट्रेनिंग्स देखता था आपकी और मैं ट्रेनिंग अटेंड भी करता था, जो एम्फेसिस आज की तारीख में हर एक ट्रेनिंग की ROI पे हो रहा है, वो एम्फेसिस उतना ज्यादा पहले नहीं होता था। मैंने देखा था कि उस समय की ट्रेनिंग में आप भी ऑब्वियसली आप प्रोमिनेंट थे हमारे साथ, बट देयर आर अदर ट्रेनर्स आल्सो, एंड हमारी इंटरनल ट्रेनिंग्स भी होती थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। बट मोस्टली वो जो ट्रेनिंग्स होती थी उसमें केवल ट्रेनिंग के घंटे कितने हो गए और क्या फीडबैक रहा, और फीडबैक में जो पहला सवाल होता था कि चाय पानी का इंतजाम कैसा था, सीट्स कैसे थी, AC काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो मेरे को बड़ी बड़ी कोफ्त होती थी उस चीज से कि भाई जब मेरे सामने लेके आते हो सिर्फ घंटे गिनवाते हो, उससे क्या हुआ। हाउ यू हैव इवॉल्व योरसेल्फ एंड योर ट्रेनिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम in order to provide the right kind of return on investment on the training and investment as a time, क्योंकि टाइम भी लगता है ऑर्गेनाइजेशन का, पैसे तो खैर लगते ही है ट्रेनिंग में, इतने सारे लोगों का टाइम लगाना, वो करना, how you are able to give that kind of return, and also how the management of the organization is getting convinced that okay, this is the training, if I am putting X value then I am getting X plus Y value. So वो आपने कैसे अचीव किया? हालांकि मैं इसका आंसर काफी कुछ जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ श्रोताओं के लिए आप एक बार बताएं। जी सर, ये ऐसा था कि जब 2001 से ट्रेनिंग शुरू की थी हमने, तब ये इंडिया में थोड़ा रिलेटिवली नया था। अच्छा, क्योंकि हम सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो बाकी ट्रेनर्स का मुझे नहीं पता। पहले तो क्या था कि यू आर राइट, कई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स कि हमने इतने घंटे की ट्रेनिंग साल में जरूर करानी है हर एम्प्लॉय की, उससे होता क्या है उसके बारे में ना वो सोचते थे, ना जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सोचते थे, राइट। लेकिन वो मैंने बताया ना कि वो हमेशा से वो एक दिमाग में रहता है कि यार एम आई एडिंग इनफ वैल्यू देन माई टेक अवे। जैसे मेरा एक वो फॉर्मूला है ना जो मैं लोगों से भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने इज्जत नहीं है ना आपकी और बाकी आपके पास सब कुछ है, तो मेरे एंगल से आपके पास कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मी। अच्छा, अब किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट आपको कैसे मिलेगी? किसी भी रिलेशनशिप में, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में, हस्बैंड वाइफ में, पार्टनर पार्टनर में, फादर सन में, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में आपको रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? तो मेरे को एक जो फॉर्मूला लगता है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मेरा फॉर्मूला है किसी भी रिलेशनशिप में आपको कुछ मिल रहा होता है और उस रिलेशनशिप में आप कुछ दे रहे होते हैं, तभी चल रही है। बिल्कुल सही। अगर आपको कुछ मिल रहा है और आप दे नहीं रहे तो रंबी चलेगी नहीं, सामने वाले को कभी तो होश आएगा, राइट। और अगर आप सिर्फ दे रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं दे रहा है, तो आपको होश आएगा। सही बात है। तो रिलेशनशिप तब सस्टेनेबल होती है, लॉन्ग टर्म चलती है, जब उसमें गिव एंड टेक का रेशो जो है थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बारी 50-50 होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक इंटेंशन ये होनी चाहिए आदमी की कि माई वैल्यू एडिशन इन द रिलेशनशिप शुड बी मोर देन माई टेक अवे। क्योंकि मैंने देखिए जब शुरू में काम किया ना, तो मैंने MNCs में काम नहीं किया था शुरू में, मैंने शुरू में काम किया था इंडियन कंपनीज के साथ। अब जो इंडियन कंपनी ओनर्स हैं, उनका तो बड़ा सिंपल है। उनको अगर आप बोलो जी कि मेरे को ये इनिशिएटिव लेना है, तो कहते हैं अच्छा ये बता इस इनिशिएटिव में खर्चा कितना होगा और उससे कंपनी को कितना फायदा होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर तुम मेरे 1000 रुपये खर्च करा रहे हो और मुझे सपोज 2000-5000 रुपये का फायदा नहीं हो रहा, तो मैं 1000 रुपये क्यों खर्चा करूं? तो क्योंकि हमने इस तरीके की कंपनी से काम करना शुरू किया था, तो वो दिमाग में ना शायद वो कील की तरह घुस गया था कि वैल्यू एडिशन हैज टू बी मोर देन योर टेक अवे। तो वो जब हमने ट्रेनिंग शुरू की, तो बहुत सारे ट्रेनर्स थे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे ना शुरू में, मैं जब नया था तो मैं उनसे कहता था ये कि प्रोग्राम के एंड में उनको ना एक एक्शन प्लान बताओ कि ये करें बाद में। तो कहते थे ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि एक्शन प्लान को फॉलो करना उनका काम है अंदर, हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, प्लस
आपने तो ज्यादा सुना होगा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर को अगर आप मेजरमेंट का शब्द साथ में यूज करो तो वो भागते हैं। कह रहे जी सॉफ्ट स्किल मेजर नहीं होते, सॉफ्ट स्किल जब जो चीज मेजर ही नहीं होती, हम कैसे आरओआई की बात कर सकते हैं। तो मुझे ना वो शुरू से ठीक नहीं लगता था, लेकिन कोई सवाल ही नहीं पूछता था तो काम चलते रहते थे। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, इससे पहले कि कोई सवाल पूछे ना, हमको खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो आरओआई चाहते थे, देखना चाहते थे। फ्रैंकली अभी भी कई कंपनीज हैं उनको अभी होश नहीं आया है, वहाँ अभी भी ना वो मैंडेज पूरे करने में लगे हुए हैं वो बस। अच्छा, और फीडबैक फॉर्म जो आप कह रहे हो, कोई भी नौसिखिया ट्रेनर भी हो ना, फीडबैक अच्छा भरवाना अब उनको आता है। करेक्ट। मतलब मैं तो कई बार उनको कहता हूँ, मैं कहा देखिए अगर मुझे ये पता है ना कि शाम को तुमने मेरा फीडबैक देना है, तो फीडबैक में कैसे तुमसे ठीक भरवाना है ये स्किल तो आजकल सबको आता है। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी में वैल्यू ऐड नहीं हुआ, तो फिर ये तो मतलब ये एक्टिविटी जो है एक्चुअली हमारे, आप उसको जिसको ज्यादा जानते हो, मुद्दा है, वेस्ट है। वेस्ट एक्टिविटी है, क्योंकि जो वेस्ट की डेफिनेशन मैंने आपसे सुनी थी और वो मेरे दिमाग में कील की तरह घुसी हुई है, एनीथिंग फॉर विच योर कस्टमर विल नॉट पे इज अ वेस्ट। बाकी जो मर्जी अंग्रेजी मार लो, जिस चीज के लिए ग्राहक पैसा नहीं देगा और वो आप काम कर रहे हो वो वेस्ट है। तो अगर मेरी कंपनी में मैं कोई ट्रेनिंग करा रहा हूं लेकिन उस ट्रेनिंग से ग्राहक को कोई लाभ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो वेस्ट एक्टिविटी है। तो ये जो दिमाग में गया, तो फिर हमने ऑलरेडी सोचना शुरू किया कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेजरेबल कैसे बनाएं, आरओआई कैसे बनाएं, और फिर हमने उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया। और अब तो खैर पिछले 10 साल से हम 50 से ज्यादा कंपनीज के साथ आरओआई बेस्ड ट्रेनिंग इंटरवेंशन कर चुके हैं, जहां उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड सर। वी चैलेंज्ड आवरसेल्व्स, इससे पहले कि कोई और चैलेंज करे। So we challenged ourselves that how can we add more value. So that's how it started, sir. That's absolutely right. One of the program which I also did with you in one of the organization, I remember कि हमने वहाँ पर एक मंत्रा दिया कि आप हर एक चीज को एक सिंपल फॉर्मूले में डालिए, जो था x to y by when. हाँ, तो x है जो आप अभी हैं, y आप कहाँ जाना चाहते हैं, और when मतलब आप कितने टाइम फ्रेम में जाएंगे। सो ये x to y by when, इस फॉर्मूले में बेसिकली कोई भी गोल को अगर आप फिट कर लेते हैं और इसमें से एक भी घटक अगर मिसिंग है, when मिसिंग है या y मिसिंग है या x मिसिंग है, तो फिर उस केस में आपका अल्टीमेटली वो गोल बहुत मुश्किल होता है उस गोल को कंप्लीट करना। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल आई थिंक ROI बेस्ड ट्रेनिंग्स कराना is something which is very unique, and this is something which I really appreciate about you. Thank you sir. तो जखमोला साहब मुझे बताइए, ये जो जॉइंट वेंचर्स जो आपकी महारत है, स्पेशलिटी है, मुझे ये बताइए सर, जॉइंट वेंचर की सबसे पहले तो भारत में क्या हमें जरूरत है जॉइंट वेंचर्स की? और मतलब जॉइंट वेंचर से जैसे मुझे समझ में आता है कि हमारी टेक्नोलॉजी में खासकर, क्योंकि हम ज्यादातर जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए जॉइंट वेंचर करना कहाँ तक सही है, या हमें अपने आप इंडिपेंडेंटली हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, वो बेटर है, या कॉम्बिनेशन बेटर है? इससे मतलब व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द कंट्री? ये सूरज एक बड़ा ब्रॉड सा सब्जेक्ट है ये। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जॉइंट वेंचर फॉर द सेक ऑफ मेकिंग जॉइंट वेंचर इज नॉट राइट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो उसको ये क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और हम कितने समय में जाना चाहते हैं, क्या रूट अपनाएंगे, वहां पर जाकर आपका जॉइंट वेंचर की बात आती है। कुछ भी सही या गलत नहीं है। जैसे आइडियली बीइंग इंडियन, आई वुड ऑलवेज एडवोकेट कि भाई अपने आप टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करिए, टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रखिए, और जितना हो सके आप अपने पास रखिए जो आपकी आईपी राइट्स हैं, या आपके क्या ज़रूरत है हमें बाहर से लेने की। लेकिन एक जो हकीकत है, एंड स्पेशली इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में मैंने मैक्सिमम काम किया है, एक जो हकीकत है इस इंडस्ट्री की वो ये है कि जो हम शायद 5 से 10 साल पीछे चलते हैं आज तक in terms of the automotive technologies, चाहे आप उसे emission systems पे मान लीजिए, चाहे आप उसे in terms of electronification पे मान लीजिए।
बहुत सारे हमारे रेगुलेशंस हैं जिनकी वजह से भी जो OEMs हैं, जो व्हीकल मेकर्स हैं, वो फीचर्स इंडिया में थोड़ा देर से लाते हैं क्योंकि उन यहाँ पर रेगुलेशंस को ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जैसे ब्रेकिंग सिस्टम के जो रेगुलेशंस हैं या सेफ्टी से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशंस हमारे पास अब थोड़ा हम लोग फिर भी यूरोपियन कंट्रीज से या US कंट्रीज के साथ हम ऑलमोस्ट उनके पास पहुंचने वाले हैं। अदरवाइज पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलते थे। उस वजह से होता क्या है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो पहले डेवलप हो जाती है बाहर के देशों में, और इंडिया में उसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं होती इसलिए उस पर काम नहीं होता। अब जब वो जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, जो मैच्योर्ड हैं, जो प्रूवन हैं, उनको दोबारा से री इंजीनियरिंग ऑफ द व्हील करना, उसमें आपका वक्त जाया होता है। और बिजनेस का रूल है जी, आप बहुत ज़्यादा एक कहोगे कि मैं तो खुद ही डिज़ाइन करूँगा, आप कर सकते हो, लेकिन कोई और ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बेहतर कंपनी से, जो प्रूवन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ एक टाई अप करके, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और उसको इंडिया में ले आता है, तो जो कस्टमर है हमारे वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। स्पेशली जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज से जो हमारे इन्वेस्टमेंट हो रखे हैं OEM कंपनीज के, जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, दे प्रेफर देयर ओन सप्लायर्स क्योंकि उनके साथ एक लंबी हिस्ट्री होती है, उनके साथ उन्होंने को डेवलपमेंट की होती है टेक्नोलॉजीज की, और उन टेक्नोलॉजी को वो चाहते हैं वो इंडिया में वही सप्लायर लगाएं, चाहे खुद लगाएं 100% FDI के थ्रू या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू लगाएं। सो इस वजह से बिजनेस डिसीजन में कई बार जॉइंट वेंचर करना या M&A कर लेना कंपनी को, या 100% FDI लेके आना इंडिया के अंदर, उस रूट से आपका जो X to Y by when, जो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कितने देर में जाना चाहते हैं, तो जो एंड कैसे जाना चाहते हैं, तो जो when वाला पोर्शन है वो एड्रेस हो जाता है। आपको पता होता है कि मैं आज इस स्टेटस में हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक टेक्नोलॉजी चाहिए, और मुझे वो टेक्नोलॉजी 1 साल में चाहिए, नहीं तो मैं टाइम टू मार्केट खराब हो जाएगा मेरा, कोई और ले आएगा। तो किस रूट से लेके आना है, उसमें अक्सर जॉइंट वेंचर या टेक्निकल लाइसेंसिंग आपका जो वैन वाला पोर्शन है वो शॉर्ट कर देता है, और आप मार्केट में टाइम से जा पाते हैं। ये इस वजह से जॉइंट वेंचर्स, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को बाहर से लेके आना कोई गलत बात नहीं है। जहां तक डिपेंडेंसी का सवाल है, मैं हमेशा एडवोकेट करता हूं, जिन भी कंपनियों में मैंने जॉइंट वेंचर में सपोर्ट किया, मैं पार्ट ऑफ द टीम रहा जॉइंट वेंचर कराने में, आई ऑलवेज एडवोकेट कि आप जॉइंट वेंचर करिए, आप टेक्नोलॉजी लाइसेंस लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएं अपने पार्टनर के ऊपर फॉर द टेक्नोलॉजी। सो डिपेंडेंसी एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंसी, बोथ आर नॉट राइट। जैसे आप 100% खुद कर रहे हैं, पार्टनर कुछ नहीं कर रहा, तो फिर जॉइंट वेंचर आपने क्यों किया? आई थिंक बीच का जो रूट है, विच इज इंटरडिपेंडेंसी, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड ऑन द जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप्स। उसमें आप जैसे ही आप टेक्नोलॉजी वहां से लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी में भी 60, 70, 80% कंट्रीब्यूशन आप इंडिया में कर सकते हैं। उसको इंडियनाइजेशन करने के लिए, उसका एक लेट्स से कॉस्ट वाइज बेटर, क्योंकि हम कॉस्ट में काफी सेंसिटिव मार्केट है, कॉस्ट वाइज बेटर अल्टरनेटिव्स निकालने के लिए, उल्टा जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको सजेस्ट करने के लिए कि आप अपनी टेक्नोलॉजी में क्या सुधार कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है या ज्यादा इफिशिएंट हो सकती है। सो आई थिंक डिपेंडेंसी के बजाय इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करना, जिसमें पार्टनर को भी लगे कि आप भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, तो कॉस्ट वाइज या टाइम वाइज हम लैक करते हैं उसके अंदर। इंटरडिपेंडेंसी इज समथिंग व्हिच वी शुड फॉलो। ये तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर्मूला भी है सर, कि जो आदमी टोटली डिपेंडेंट है वो हीन महसूस करता है। करेक्ट। अच्छा, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट है वो थोड़ा कई बार सुपीरियर महसूस करता है। तो रिलेशनशिप में दोनों चीजें ठीक नहीं है। अच्छा, फैक्चुअल रियलिटी तो ये है कि एवरीबॉडी एक्चुअली, माने या ना माने, इज इंटरडिपेंडेंट। भाई हमारी ऑक्सीजन पौधों से आ रही है, पौधों को हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, हस्बैंड वाइफ पे डिपेंडेंट है, वाइफ हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, सरकार नागरिक पे डिपेंडेंट है, नागरिक सरकार पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर। एक्चुअली फैक्चुअल रियलिटी तो ये है कि हर चीज में इंटरडिपेंडेंस है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जॉइंट वेंचर भी एक तरीके से रिलेशनशिप ही होती है, रिलेशनशिप है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है क्योंकि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप तो आपकी पर्सनल होती है, और इससे इफेक्ट सिर्फ आप दोनों को पड़ता है या बड़ी हद तक आपके एक्सटेंडेड फैमिली को पड़ सकता है। बट जो जॉइंट वेंचर होता है उसमें काफी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे एम्प्लॉय स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इंटरडिपेंडेंस को डे वन से सोच के चला जाए और उस पर अमल किया जाए। वंडरफुल सर। अच्छा सर, ये बताइए सर, आजकल ये जो बड़ा, मैं तो एज अ नोविस पूछ रहा हूँ, ये जो ईवी का क्रेज चल रहा है सर, ये ईवी ये कितना सस्टेनेबल है और ये वाकई में एनवायरनमेंट के लिए बहुत मतलब यूजफुल है? इसका भविष्य क्या देखते हो सर, या हम अभी थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में? टेस्ला आ रही है इंडिया में? टेस्ला तो मस्त साहब बेटर बता पाएंगे। और आजकल जो टैरिफ का डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से इक्वेशंस आगे कैसे रहेंगी वो बहुत मुश्किल है इस समय प्रेडिक्ट करना। मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ ईवी के विषय में। हर एक आदमी के पास एक ओपिनियन है। हाँ जी। जो लोग कहते हैं ना, जिसको जहां जो देखना चाहता है वो वहां वो देखता है। तो जो ईवी इंथुसियास्ट हैं जो कहते हैं कि साहब ईवी अच्छी है, दे एडवोकेट कि ईवी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आने वाली है। और जो थोड़ा सा हट के बात करना चाहते हैं वो उसके विषय में कहते हैं भाई ईवी का कोई भविष्य नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सो मैं पक्ष विपक्ष पे नहीं जा रहा, मैं आपको क्योंकि मैं एंट्रेंस्ड हूँ इस इकोसिस्टम के अंदर, तो मैं आपको एज अ इनसाइडर बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में रहने वाला है, पूरे वर्ल्ड में रहने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए नहीं रहने वाला कि वो गैसोलीन या डीजल के खिलाफ है, वो इसलिए रहने वाला है कि वो एक ऑप्शन है। और ऑप्शंस, जो वायबल ऑप्शंस होते हैं, वो हमेशा प्रकृति में रहते हैं, इंडस्ट्री में भी रहते हैं और आपके जीवन में भी रहते हैं। आपके पास एक गाड़ी पेट्रोल है जो आप लॉन्ग ड्राइव के लिए या हाई स्पीड के लिए या आप एक फन के लिए यूज करते हैं। एक गाड़ी आपके पास इलेक्ट्रिक है जो आपकी एक लो कॉस्ट व्हीकल है, जो आपकी सिटी की सारी जरूरतें पूरी करती है, लो मेंटेनेंस है, उसमें कोई आपको बार बार रुक के कुछ कराने की जरूरत नहीं है, इजीली आप चार्ज कर लेते हैं उसको। प्लस अब जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो लॉन्ग रन के लिए भी आ रहे हैं। सो ईवी का जो सबसे बड़ा लोगों के अंदर भय है वो है कि साहब मेरी बैटरी का क्या होगा, रेंज कैसे आएगी, या मैं चार्जिंग कैसे करूंगा। उसके बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लगातार आ रहे हैं। आपको कोई महीना ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आप कोई न्यूज नहीं पढ़ोगे कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी की बैटरी बन गई है, डिफरेंट टाइप का आपका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। सरकार भी काफी सारे काम कर रही है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू स्टे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द लेट्स से द चार्जिंग इनसाइड द बेसमेंट्स एंड सेफ्टी वेरियस काइंड ऑफ बैटरीज जैसे जैसे आती जाएंगी उतना ज्यादा एडॉप्शन बढ़ता चला जाएगा। जहां तक सेफ्टी रिलेटेड सवाल है कार्स का, सो अगर आप नंबर्स में देखें, सो जो इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं वो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम इंसिडेंसेस इंफीरियर क्वालिटी बैटरीज एंड रश्ड डेवलपमेंट का रिजल्ट है। कोई आदमी कहता है मैं साल भर के अंदर स्कूटर लॉन्च कर दूंगा या कार लॉन्च कर दूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, जो एक व्हीकल मास मार्केट के लिए बनता है जिसमें हर एक यूजर यूनिक है, अपने तरह से इस्तेमाल करता है व्हीकल को, वो किसी भी हालत में आप एक शॉर्ट टाइम में डिजाइन करके डेवलप नहीं कर सकते। इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। छोटे छोटे चीजों को भी डेवलप करने में समय लगता है। सहज पके सो मीठा होए, ये हर एक उस पर लागू होती है और इस पर भी लागू होती है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो स्टार्टअप्स है जिन्होंने डीप इंजीनियरिंग में डीप टेक में काम किया हुआ है, उनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल होंगे। और जो मैक्सिमम लोग जो शूडो लोकलाइज कंपनीज हैं जो मैक्सिमम हमारे पड़ोसी देश से आइटम लाके असेंबल करके बेचते हैं, उनका ये गोल्डन पीरियड चल रहा था जो अब वो धीरे धीरे करके बीन ऑफ हो जाएगा। सो जो अपॉर्चुनिस्ट हैं जिन्होंने डीप टेक पे काम नहीं किया वो इरेलेवेंट हो जाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी पे जिन्होंने काम किया है वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। एक और एंगल है इसके अंदर, लोग हाइब्रिड की बात करते हैं, साहब ईवी से बेटर हाइब्रिड है। इस चीज को समझने वाली बात है, हाइब्रिड इज ऑल्सो ईवी। हाइब्रिड व्हीकल कोई अलग नहीं होता, सिर्फ ये है कि जो बैटरी उसके अंदर लगी हुई है, एक तो उसका साइज छोटा है और उस बैटरी को चार्ज आप गैसोलीन इंजन से कर रहे हो।
बजाय इसको आप बाहर से बिजली करने के लिए। तो अगर हाइब्रिड्स भी जाते हैं मार्केट में, हाइब्रिड का भी इंक्रीज होता है, वो एक तरीके से ईवी को ही बढ़ावा मिल रहा है। राइट। क्योंकि हाइब्रिड में मोटर भी होती है, बैटरी भी होती है, आपका इन्वर्टर भी होता है, चार्जर भी होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर। ओनली थिंग इज के एक तरीके से आप डीजल या पेट्रोल का जनरेटर लगा के आप उसको चार्ज कर रहे हो, और उसी जनरेटर या उसी इंजन से आप गाड़ी भी चला रहे हो जब आप हाई स्पीड में चल रहे हो, और जब आप की बैटरी सफिशिएंटली चार्ज है तो आप ईवी से चला रहे हो। तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसको समझते हैं, बट क्योंकि जो व्हीकल खरीदने वाले लोग हैं उनको टेक्नोलॉजिकली इतना ज्ञान नहीं होता, तो वो उनको लगता है पेट्रोल अलग चीज है, हाइब्रिड अलग चीज है, और ईवी अलग चीज है। हाइब्रिड इज हाइब्रिड बिकॉज ऑफ ईवी एंड गैसोलीन बोथ आर पुट टुगेदर। सो ईवी इज हियर गोइंग टू स्टे सर, देयर इज नो अदर वे। ओके, चलिए सर, गुड टू नो। अब मुझे सर ये बताइए, आपने इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन पर काम किया है, ये सर ये जो जेन जी कहते हैं हर बारी आपने भी हैंडल किए हैं, आपने भी उनके साथ काम किया है। हैंडल शायद वर्ड ठीक नहीं है, हैंडल वर्ड ठीक नहीं है जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो आजकल आपको पता है कई कंपनियां हमको कह रही जी प्रोग्राम करो हाउ टू हैंडल जेन जी। तो मैं उनको पहले रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि हैंडल शब्द हटा लो क्योंकि द मोमेंट यू से हाउ टू हैंडल जेन जी, तो जेन जी इसी बात पर मतलब ये क्या मतलब है भाई है। तो हाउ टू वर्क विद जेन जी, आपने क्या किया सर, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट जेन जी या आजकल मिलेनियल्स ये जो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, मेरा बेटा खुद ही जेन जी है, तो मेरे को जो है वो बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, हैंडल वर्ड नहीं यूज करना। सो जेन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्नॉलेज व्हाट दे हैव एंड व्हाट वी डोंट हैव। सो दे आर मोर स्मार्टर फॉर श्योर, they are much more capable and fast and adaptive for the newer technologies. एक चीज जो उनके पास शायद आई होप के समय के साथ आएगी, वो एक ठहराव है, और किसी एक चीज के साथ जुड़े रहने का। जैसे हमारे जमाने में हम कुछ स्टार्ट करते थे, कहीं जॉब शुरू करते तो हम सोचते भाई 2-3-4 साल तो हम कम से कम, और हमको हमेशा सिखाया जाता था कि साहब 20 से और 30 तक आपको सीखना है, 30 से 40-45 तक आपको अर्न करना है, और फिर 45-50 के बाद आपको जो है लोक कल्याण के कार्य करने हैं, और साथ में अपना जिम्मेदारियां निभानी है, क्योंकि 45 के बाद फिर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो जेन जी का जो डिटैचमेंट है वो शायद एक चीज है जिसके लिए उनको काफी सारी मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, और वो मेंटरशिप हमें बहुत केयरफुली देनी होती है। दे आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे उनको दिया हुआ कोई टास्क हो, उनका दे आर क्वाइट डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग दे आर डूइंग। सो वो कुछ एक कार्य कर रहे होते हैं, फिर वो रुक जाते हैं, फिर दूसरा करने लगते हैं, फिर तीसरा फिर वो अल्टीमेटली घूम फिर के वापस अपने मोबाइल फोन पर या अपने फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं। सो सेंस ऑफ डिटैचमेंट इज समथिंग विच इज अ चैलेंज। और हमने कैसे किया, हमने ऑब्वियसली हमने उनको अपने पास पुल करने के बजाय हम उनके पास गए, और मैं नहीं कहूँगा मैं बहुत सुपर सक्सेसफुल था, बट जेन जी को थोड़ा हमने एक तो नेगेटिवली उनके जो ट्रेड्स थे उनको कभी हमने ये नहीं कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो। हमने उनसे हमेशा ये कहा कि ये जो भी ट्रेड तुम्हारे पास है, उन ट्रेड्स को यूज करते हुए कंपनी की तरक्की में आप कैसे भागीदारी ले सकते हैं, उस पर आप ज्यादा बेहतर कार्य करिए। तो जेन जी के लिए थोड़े प्रोग्राम्स अलग करें, उनके बैठने का तरीका, स्ट्रॉन्ग वाईफाई देना पड़ता है उनको उनके बीच में जो ब्रेक्स होते हैं उनके, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और दूसरा जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आई थिंक वो जेन जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसे रात में आप 2-3-4 बजे तक काम करा लो, लेकिन सुबह अगर आपने जल्दी बुला लिया तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये सारे अडॉप्शन कंपनियों को करनी चाहिए अपने उसमें। बाकी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा समझें बजाय जेन जी को समझाने के लिए। लेकिन ये समस्या तो सेमवाल जी आपके साथ भी काफी ज्यादा लोग आपको बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आप तो एक तरीके से मतलब बड़े सिस्टमैटिक, हमने तो वो करा जो हमने देखा सीखा और गिरते पड़ते करा, बट आप तो बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को समझाते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ आप कैसे करते हैं इसको, और आप स्वयं भी एक मतलब जेन जी के पिता हैं तो आप कैसे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में कैसे हैंडल करते हैं? तो इसमें जखमुल्ला साहब
एज अ पेरेंट वाला तो मैं बाद में बताऊंगा। जरूर। लेकिन मेरा मेरा जो इस पे टेक है वो ये है, जो मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जेन जी जनरली लोग ना एज से डिफाइन करते हैं कि जो इस सन से इस सन के बीच में वो जेन जी है। टेक्निकल डेफिनेशन ओके, लेकिन लोग एक चीज बुनियादी मिस कर रहे हैं कि उस डेट ब्रैकेट में पैदा हुआ आदमी जो बुलंदशहर का है और गुड़गांव का और दिल्ली का है, उसमें फर्क होगा। प्लस फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली एंड अदरवाइज फर्क होगा। तो जो मैं पहली सजेशन लोगों को देता हूं कि प्लीज डू नॉट पुट ऑल जेन जी इन वन ब्रैकेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पालन पोषण, मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, उस समय भी कुछ उस एज हमारे मित्र थे जिनका व्यवहार हमारे जैसा नहीं था, जबकि थे तो हम भी उस समय की जेन जी, लेकिन हमारे व्यवहार, तौर तरीके, पसंद नापसंद उनके जैसी नहीं थी। तो अगर कोई हम दोनों के साथ सेम व्यवहार करता तो गलती करता दोनों में से एक के साथ तो पक्का। तो पहली चीज ये है कि डू नॉट पुट पीपल इन द ब्रैकेट बिकॉज ऑफ देयर एज। एक्चुअली सर्कमस्टेंसेस विल डिसाइड कि व्यक्ति किस तरीके का है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, अब कई लोग कहते हैं जी आपका बच्चा तो बड़े अच्छे है जी, और ये आज के समय में दिल्ली में ऐसा कहाँ होता है। मैं फिर उनसे कहता हूँ, मैं कहा यार अब तुम क्या सोचते हो, मतलब दिल्ली में जो बच्चे पल रहे हैं वो सब एक जैसे पल रहे हैं? अरे मेरी जॉइंट फैमिली है, हमारे 16 लोग हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, अच्छा मेरा छोटा ब्रदर उसका अपना बिजनेस है, उससे छोटा वो अपना काम करता है। तो जॉइंट फैमिली का बच्चा जिस तरीके से उसकी परवरिश होगी या जिस तरीके से उसके नाज नखरे सही जाएंगे वो बिल्कुल अलग होगा बजाय इसके जो बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में। अच्छा, इस बात का भी फर्क पड़ता है कि आप ओनली चाइल्ड हो या आप 2-3 भाई बहन हो, इससे भी फर्क पड़ता है। तो जेन जी को एज ब्रैकेट में, स्टेट ब्रैकेट में डाल करके अगर हम उनके साथ डील करते हैं तो डेफिनेटली वी विल मेक अ मिस्टेक। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हर यंग पर्सन, यंग बाय डेफिनेशन का मतलब यह है कि यू विल चैलेंज द एग्जिस्टिंग। आज हम जो मतलब बड़े शांत होकर बातें कर रहे हैं और बड़े सुलझे हुए दिख रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी थे पैदाइशी। हमने भी तो कई एग्जिस्टिंग चीजों को चैलेंज किया है। अब जैसे हम आजकल के कई रैपर्स किए, क्या कौन से गाने हैं, गाने तो हमारे जमाने में होते थे, वो बाबा साइकिल तो हमारे जमाने में था, है वो हवा 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 हवा, वो सब गाने हमारे जमाने में तो थे। अच्छा, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे अभी ये क्या बकवास गाने चल रहे हैं, पर हम भी उस समय बहुत बड़े गाते थे। अच्छा, आज हम उन्हीं गानों को आज हम नहीं गाते, हम कहते नहीं वो ठीक नहीं, जबकि उस समय तो स्कूल में हम भी मतलब बड़े अहुआ हुआ करते थे कि नहीं करते थे। तो ये ना आई थिंक वो थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट में आदमी ना अपना एक्चुअल भूल जाता है और वी स्टार्ट जजिंग देम टू सून। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, अब मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हुए 25 साल हो गए। अब एक लड़का अभी 3-4 साल से ट्रेनिंग कर रहा है हमारे साथ, हाँ। तो अब जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है तो हमको खट दिख जाता है कि ये गलत है भाई, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना चाहिए था, या ये एक्टिविटी की इसमें जरूरत नहीं थी। लेकिन वो मुझे आज दिख रहा है ना 25 साल बाद, वो तो अभी तीसरे साल में कर रहा है। तो वी स्टार्ट जजिंग देम मोर रादर देन अंडरस्टैंडिंग। जैसे फ्रैंकली, जैसे मेरा बेटा गलतियां करता है, बेटी है वो भी गलतियां करती है, तो कई बार अंदर से वो आवेश आता है कि अब इनको कुछ कहा जाए, इनको कुछ सुनाया जाए। तो मैंने अपने लिए एक फार्मूला रखा हुआ है कि जब भी मैं फीडबैक देने वाला हूं या मैं थोड़ा कुछ कहने वाला हूं तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि जब मैं इस उम्र में था तो मैंने कौन सी वाली गलतियां की थी। और जखमोला साहब, परमात्मा की बड़ी कृपा है, जब भी मैं इस फिल्टर को लगाता हूं ना अपने बच्चों के साथ, मुझे लगता है मेरे वाले देवता हैं। क्योंकि जब अपनी खुराफातें याद आती हैं, अपनी नाकामियां याद आती हैं, अच्छा किस तरीके के हम काम करते थे, क्या हमारी सोच होती थी, उसके हिसाब से तो आज के वाला थोड़ा बेटर है, बेटर है वो। तो अंडरस्टैंडिंग मोर, जजिंग लेस will definitely help connecting with people who are young at age right now.
रादर देन कि ये तो जेनजी वाला है, तो ये तो जैसे कई मेरे को कंपनी में जब वो ओरिएंटेशन नहीं कर रहे थे कि सर जरा ये जेनजी वालों को ना सर ये निकम्मे हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, टाइम को नहीं एडियर करते, सुनते नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं जी आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, क्या करूं? और मैं कहा गुरुदेव तुम्हारी नहीं सुनते, बहरे थोड़ी हो सुनते हैं, तुम्हारी नहीं सुनते, कई इन्फ्लुएंसर्स की सुनते हो पर तुम्हारी नहीं सुनते। तो थोड़ा चेक करो कि मेरी क्यों नहीं सुनते, जब बाकियों की सबकी सुनते तो मेरी क्यों नहीं सुनते। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक बच्चा जिसकी सिंगल ओरिएंटेशन, जो इकलौता बच्चा है, देखिए उसकी परवरिश का तरीका अलग है। इसमें उसका कसूर नहीं है कि वो सिंगल चाइल्ड है, और ये कसूर नहीं है। अच्छा तुम 2 3 4 हो, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है लेन देन, अब वो तुम्हारे साथ हुआ है। तो दे आर डिफरेंट, लेट्स नॉट पुट द लेबल डिफिकल्ट। और एक चीज और है, उनके आज के स्टेटस को देख के इनका फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना आई थिंक थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ जी, मैं जब काम धंधा शुरू किया था मुझे थोड़ी पता था मैं कोई पब्लिक स्पीकर बनूंगा या मैं कोई किताबें लिखने वाला हूँगा, कहीं ख्वाबों ख्यालों में नहीं था। तो हाउ कैन आई जज somebody on the basis of today's behavior and performance? We need to have a little patience with them. तो आई थिंक अगर ये थॉट प्रोसेस में हम थोड़ा एडजस्ट कर लें, उसके बाद फिर उनके साथ ना कनेक्ट करना आसान हो जाता है। अच्छा जैसे हम भी जब 22-23 के थे तो हमारे को भी तो कोई जो 50-55 के थे उन लोगों ने लीड किया था, तो कैसे कनेक्ट किया था उन्होंने हमारे साथ, कैसे हमारी आदतों को सुधारा था, वरना हम कोई पैदाइशी तो डिसिप्लिन थे नहीं। तो उस समय भी तो कुछ लोगों ने यंग जनरेशन के साथ डील किया है और सक्सेसफुली डील किया है, और यही कारण है कि आज हम शायद यहाँ बैठ के उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो यही मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ कि स्टॉप जजिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर। और जो इसका जो कई लोग थोड़े काफी जेन्युइन समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जैसे आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, कई छोटे छोटे बच्चे आजकल बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल हो रखे हैं, टोटली अनकंट्रोलेबल। उसका एक कारण जगमोला साहब, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, पर मुझे ये लगता है कि आजकल जो पेरेंट्स बन रहे हैं ना, इनका पेरेंटिंग स्टाइल में ना थोड़ा सा लव ज्यादा है, डिसिप्लिन लेस है। हाँ, अच्छा अब या तो ये साइकोलॉजिस्ट को ज्यादा सुनते हैं, वो बताते हैं पहले 6 साल में बच्चे को टोटल लव दो, उसके बाद फिर डिसिप्लिन करो। अच्छा मुझे नहीं समझ में आता 6 साल तक का जो बच्चा है उसको क्या समझ है, उसकी क्या है कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी क्या है, वो तो टोटल स्पॉन्ज है उस वक्त। अच्छा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 6 साल के बच्चे को तुमने फौजी बनाना है या तुमने उसको इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, लेकिन 6 साल के बच्चे को एक चीज समझा देनी चाहिए, व्हाट इज एटिकेट, व्हाट इज डिसिप्लिन, हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हाउ टू टॉक टू अदर्स। इतना बेसिक तो आप मतलब ये स्कूल के भरोसे नहीं छोड़ सकते सिर्फ, ये अगर घर पर ट्रेनिंग हो जाए पहले 6 साल में, तो मैंने ये देखा है कि अगर पहले 6 साल में बच्चा एटिकेट सीख ले, डिसिप्लिन सीख ले घर पे, उसके बाद बाकी सब चीजें तो उसको दुनिया सिखा देगी। अच्छा लेकिन अगर उसमें एटिकेट्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और आप उसको बाहर भेज रहे हो कुछ सीखने के लिए, वो बाहर वाला भी हथकड़ा कर देगा, जी आई एम सॉरी आई कैन नॉट हैंडल दिस चाइल्ड। तो डिसिप्लिन के लिए बाहर भेजना आई थिंक लेट हो जाता है, डिसिप्लिन घर पे। तो जो लोग पहले डिसिप्लिन करते हैं उनके बच्चे लवेबल हो जाते हैं दुनिया के लिए, लेकिन जो सिर्फ खुद लव करते हैं फिर सारी जिंदगी इनको ही प्यार करना होता है, अपने बच्चों को और कोई नहीं करता है। तो ये दिल पे पत्थर रख के ना, आई अंडरस्टैंड, दिल पे पत्थर रख के थोड़ा सा बच्चे के डिसिप्लिन पे माता पिता को काम करना चाहिए। ओनली लव डोज आई थिंक बाद में फिर पेरेंट्स को भी परेशान करती है, बच्चे को भी परेशान करती है। तो आई थिंक अगर इस बेसिक चीज का ध्यान रखा जाए, आई थिंक बाकी सब तो सब करते करते सीख जाते हैं। That's great. Thank you.